Well, praise the Lord. Greetings in Jesus' name to everyone. And I guess we should say Happy New Year too. आप सबको सलाम खुदावन की तारीफ करते हैं एक मतलब फिर एक दूसरे को देखकर Amen. It's great to be back with you all. And I hope and pray that everyone is doing well in Jesus. एक मतलब फिर आप सबको देखकर वापस आकर यहाँ पर क्लास में अच्छा लग रहा है We're thankful unto God for keeping us and for the opportunity to come together again and study the Word of God. खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि एक मतलब फिर हम जमा हुए हैं और उसके कलाम भी हम मुतालक कर रहे हैं As we come together to grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ, it is really important for us to understand some basic Bible doctrines. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब हम उसके फजल और उसके नॉलेज में उसके इरफान में हम बढ़ रहे हैं बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को उसकी बातों को गहरे तौर पर जान सकें We are all students of the scriptures, and we will always be students of the scriptures. और हम हर वक्त ही खुदा का कलाम ही आगाह करता है कि उसने हमें जुबान बख्शी है शागिर्द की जुबान बख्शी है तो हम हर वक्त ही शागिर्द के ही उसमें रहते हैं ताकि हम और जान सकें खुदा के कलाम को Even as we studied in the previous class series, The Principles of the Doctrine of Christ, we are going on to perfection, or we're going on to full spiritual maturity. और यहाँ तक कि पीछे जो हमने मुताला किया था खुदा के कलाम में से वो जो मसीह यीशु की इब्तदाई बातें हैं ताकि हम जो कमाल है तरफ हम बढ़ सकें So we've come together again because we are all yearning and hungering for more of God's word, and I'm glad that you're here. I'm glad to be here. सो एक बार तो फिर हम यहाँ पर जमा है ताकि हम मजीद उसको जान सकें उसमें आगे बढ़ सकें मुझे बड़ी खुशी है कि एक बार तो फिर हम यहाँ पर जमा हैं So as we begin, every class we do encourage you to take good notes, to follow along, and remember we are recording this, so you'll be able to go back and watch the replay and listen again. हर पिछली क्लासेस की तरह इस क्लास में भी ये मौका है कि आप नोट्स ले सकते हैं हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं आपके लिए ताकि हम मजीद आगे बढ़ सकें All right, so we can begin with prayer, and then we will get into our new subject. चलें हम दुआ के साथ शुरू करते हैं एक नई मजमून के साथ अपनी इस बाइबल स्टडी को All right. Father, in the name of Jesus, God, we thank you, Lord, for this day. God, we bless you and we praise you for this opportunity that you have given us one more time to gather ourselves together, oh Lord, online, across Zoom, God, literally across the world. We thank you right now, Lord Jesus, for those of us from the United States, those from Canada, and those in Pakistan. We bless you and praise you, O Lord, that you moved on our hearts, O Lord, at the various times that we are in, O God, to gather together to study your word, to increase in knowledge, to increase in the grace and the strength of God. We kindly ask, O Lord Jesus, your blessings over this class. We pray right now, God, that you would get the glory out of every word that is spoken, that your word will go forth with power. We pray, Lord Jesus, that you would open the hearts and the minds of everyone on this call in this class, that we may receive with meekness the engrafted word which is able to save our soul. Touch right now, Lord, Pastor Farouk's body, Lord, give him strength and send healing to his body, as well as healing to all that stand in need of such a gift. Oh, Lord, we know that the gifts of healing come from you, and we seek you now for strength. We seek you for power. We seek you for clarity, for understanding. Bind the devil right now in the name of Jesus.
We bind every spirit of doubt or confusion. And we pray right now, God, that you would give us clarity of thought. Have your way in this class. We'll thank you and praise you for all things. In Jesus' name we pray. Yesum Masih Nam say, Amen. आमीन। Amen. All right. Well, I do have a presentation that I can share if everyone will be able to see it. Let's see. तो मैं यहाँ पर आपके सामने एक प्रेजेंटेशन जो है वो पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगी। If you can't see it, if it doesn't make too much sense, just please let me know and I'll stop sharing it. अगर आपको ये नजर ना आए किसी भी सबब से तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि फिर इसको मुझे दिखाने का कोई फायदा नहीं है अगर आप ना देख सकें। Can everyone see that? Is that सब इसको स्लाइड को जो सामने है कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या आप उसे देख सकते हैं? it may not be necessary. Here, let me turn it off. You can अगर see आप it, but it's just a little smaller print. Okay, yeah. I have it in Roman Urdu or Urdu script. I just need to go back through it. So no issues, no issues. Let's see here. Let me turn it अगर off. आपको नजर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है। रोमन उर्दू में भी मेरे पास है इसकी जो ट्रांसलेशन है, लेकिन अगर आपको नजर नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, हम उसके बगैर भी काम चला लेंगे। Well, as you probably noticed, we are going to study this class is going to be around the oneness of the Godhead in Christ Jesus. सो जो हम बाइबल स्टडी हम करने जा रहे हैं वो है एक खुदा का होना यीशु मसीह में। मोनोथीइज्म जो मोनोथीइज्म है उसके हवाले से हम सीखने जा रहे हैं। For the next few weeks, we are going to look at the oneness of God. We'll study the oneness versus other teachings that are taught in the world, and we'll seek to establish why the oneness message is the doctrine of the scriptures. सो जो खुदा का एक होना है उसके हवाले से हम सीखने जा रहे हैं खुदा के कलाम में से कि खुदा का कलाम किस तरह से हमें आगाही बख्शता है खुदा के एक होने के हवाले से, और फिर जो दीगर जो तरह की जो तालीमात हैं जो वननेस के जो एक होने के हवाले से अलग किस्म की तालीमात हैं उनके हवाले से भी हम जायजा लेंगे। We know that the oneness of the Godhead in Christ Jesus is a cornerstone of the apostolic faith. सो याद रहे कि जो रसूली जो ईमान है उसमें ये बुनियादी जुज है खुदा का एक होना यीशु की सूरत में, यीशु मसीह में। ये जो रसूली तालीम है उसका बुनियादी जुज है। It is a cornerstone of the apostolic faith because it is what the apostles taught. और ये इसलिए भी रसूली तालीम का रसूली ईमान का बुनियादी जुज है क्योंकि यही जो रसूल थे उनके दरमियान भी ये बुनियादी ही जुज था। And we know that if anyone in the Bible had the truth, we know it was the apostles because they only taught what Jesus taught them. और हम सब जानते हैं कि अगर कोई जिन्होंने जो सीख है जो सच्चाई है जिनके स्वभाव से बाहर आई है तो वो रसूलों के अलावा कोई और दूसरे हो नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने मसीह यीशु के कदमों में तालीम पाई मसीह यीशु से बजाते खुद। So as we study this particular subject, the oneness of God, we're going to look at a lot of scriptures. सो जब हम मसीह इस हवाले से जब हम सीखने जा रहे हैं खुदा के एक होने के हवाले से तो हम बहुत सारे हवाला जात को भी देखेंगे। We'll look at
scriptures in the Old Testament, in the New Testament, because the entirety of the Bible promotes the doctrine of the oneness. सो इस हवाले से हम ना सिर्फ नए अध्याय को बल्कि पुराने अध्याय को भी दोनों पूरी बाइबल में से पुराने और नए अध्याय में से, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो मजमून है खुदा के एक होने का, ये पूरी बाइबल इसको बड़े ध्यान से बयान करती है. But before we get into it, there are a few scriptures that we need to look at to help us to understand how the Bible is written. सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ हवाला जाता है जो हम खुदा के कलाम में से इस हवाले से हम देखेंगे, जो हमें तो गहरे तौर पर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मुहैया करती है. Because if we understand how the Bible is written, then we can understand how it should be studied and the kind of attention that we should give to each and every verse of Scripture. तो हमें इस बात को समझना होगा कि खुदा का कलाम जो है वो किस तरह से हमारी रहनुमाई करता है और हमें अंडरस्टैंडिंग बख्शता है. So the first scripture I would like for us to go to is St. Matthew chapter 4. So इस सिलसिले में जो पहला हवाला हम देखेंगे वो मत्ती की इंजील और उसका चौथा बाब है. St. Matthew chapter 4 and in verse number 4. और इसके सिलसिले में मत्ती की इंजील चौथा बाब और उसकी जो चौथी आयत है उसको हम देखते हैं. यहाँ पर लिखा है, सफा नंबर उर्दू की बाइबल में 7 है. उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है. Now, this particular verse, this wording, this language that Jesus uses is actually recorded the 3 places in your Bible. और ये जो आयत है, ये जो हवाला है, ये जो बात है, ये मसीह यीशु के मुंह से निकला है और 3 मर्तबा रिकॉर्ड किया गया है अंजीलों में. The first place where it says this is in Deuteronomy chapter 8. और इसको जब हम देखते हैं तो वो इस्तिस्ना की किताब में उसके 8वें बाब को जब हम देखते हैं. Then it is in Matthew chapter 4. और फिर यहाँ मत्ती की इंजील उसके चौथे बाब में. And it is also in Luke chapter 4. और फिर इसी तरह से लूका उसके चौथे बाब में देखते हैं. 3 times in the Bible we read these words, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. और 3 मर्तबा जो है ये कलाम में आया है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है. Now notice, he did not say every verse. He didn't say every sentence. He didn't say every paragraph. He said every word. So यहाँ पर ये नहीं लिखा कि किसी आयत से या किसी जुमले से, बल्कि यहाँ पर लिखा है कि हर बात जो खुदा के मुंह से, हर बात. That lets you know that as we read and study the Word of God, every word is important and every word deserves our attention. तो याद रहे कि जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो आपको इस पर गौर करने की जरूरत है कि यहाँ पर लिखा है हर वो बात, हर बात, छोटी है बड़ी है जैसी भी है, हर बात जो खुदा के मुंह से निकलती है. Sometimes when we read the Bible, we read so fast, we read right through things. But as you're studying it, we've got to be very careful to understand every word that proceeded out of the mouth of God. कभी कभार जब हम बाइबल का मुताला करते हैं तो हम बस उसको पढ़कर आगे निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं, बगैर उसको सोचे समझे चबाए हुए, जैसे जुगाली करते हैं, चबाते हैं.
उस तरह से नहीं चबाते, हम फौरन आगे बढ़ जाते हैं। पर यहां पर जब हम बाइबल स्टडी करते हैं तो जरूर है कि हर एक बात को आपको उसको चबाने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है कि वो उसका माखज क्या है, वो क्या है। And we're reading this because as we study the oneness of the Godhead, in order to get an understanding, you're going to have to pay attention to every word that you are reading. सो हम जब ये इसको पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना होगा, हमें समझना होगा कि जब हम खुदा वाहिद की हम जो मुताला कर रहे हैं तो हमें हर उस बात को, हर एक बात को जांचना है, चबाना है, जुगाली करना है, ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझ सकें। One thing I've learned about God is that nothing about God is abstract. Everything is specific. God says what he means and he means what he says. सो जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हमें देखना होगा कि मतलब उसके बगैर, खुदा के बगैर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो खुदा है, और जो खुदा ने कहा है उसके हर एक मतलब को, उसके सेंस को समझना होगा। So now let us go to Matthew chapter 5. सो इसलिए हम मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की तरफ अगर हम बढ़ें, And let's read verse number 18. तो 5वें बाब की जो 18वीं आयत है, यहां पर सफा नंबर 8 में यहां पर लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तो रेत से हरगिज न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। Now, he says that not one jot or one tittle shall pass until all of the law or all of his word be fulfilled. सो वो उसने यहां पर ये कहा है कि यहां पर एक नुक्ता या एक शोशा जो तुरे से हरगिज ना टलेगा जब तक कि उसका जो कहा हुआ है, उसका जो जो कहना है, जो उसका जो कलाम है, जब तक वो पूरा ना हो जाए। Now, when you look in your Bible and you see a period anywhere in your Bible, anywhere in a verse, that's a jot. A jot is a period. सो आप जब बाइबल को आप खोलते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर जब एक जुमला मुकम्मल होता है तो उसके आखिर में जो है वो एक जो पीरियड है, एक निशान जो है वो डाला जाता है। And if you look in your Bible, a tittle is like the cross of a T. If you look in your Bible, if you have an English Bible, if you see the cross of a T, that's what a tittle is. सो ये जो शोशा है, ये जो नुक्ता है, जो आप देखें जब जुमला मुकम्मल हुआ है तो वहां पर हमारे यहाँ उर्दू की बाइबल में जो वो एक लाइन उसके ऊपर वो जीरो सा बना हुआ है। Yes. In other words, when you're studying the Bible and you're reading the Bible, not only do you have to pay attention to every word, but even the punctuation that is used in a verse is important. सो जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, जब आप खुदा के कलाम, जरूरी नहीं कि आप हर चीज को आप वो उसको देखें, लेकिन जो जहां पर जो जोर दिया गया है उसको देखने की जरूरत है। That means that God is so specific and so technical that he's going to fulfill every word down to the very period and down to the cross of a T. सो इसका मतलब है कि खुदा कैसा खुदा है जो एक एक चीज पर नजर रखता है कि कहां पर नुक्ता, कहां पर शोशा, कहां पर जो पीरियड है वो आना है। Now, if God is that specific and technical in giving us the word, then he requires that we be that specific and technical in studying and understanding his word. तो आपको समझना होगा कि अगर खुदा इस कदर हसास है कि कहां पर शोशा लगना है, कहां पर पीरियड लगना है, कहां पर निशान लगना है, और किस तरह से जुमले की बनावट होगी, तो वो हमें भी उसी तरह से समझने की
खुदा के कलाम को जरूरत है जिस तरह से खुदा ने अपने कलाम को पेश किया है। So now let us go to 1 Timothy chapter number 2. और इसीलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं पहला तिमोथियस और उसके दूसरे बाब की तरफ, 1 Timothy chapter 2, and I'm sorry, 2 Timothy chapter 2 and verse 15. 2 Timothy chapter 2. दूसरा तिमोथियस और उसका दूसरा बाब और वर्स 15 Yes, sir. और उसकी जो 15वीं आयत है, दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब और उसकी 15वीं है, सफा नंबर 206 है उर्दू की बाइबल में। यहां पर लिखा है, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक की कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। Now, he says for us to study to show ourselves approved unto God. सो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं रसूल के अपने आप को खुदा के सामने इस तरह से पेश करने की जरूरत है। A workman, a workman. In other words, it takes work to study the Bible. सो वो ये कह रहा है कि जब आप खुदा के कलाम का मुताला करते हैं, जब आप स्टडी करते हैं, तो ऐसे खाली पीली नहीं, ऐसी जैसे जिस तरह से आप कुछ काम करते हैं उस तरह से आपको बाइबल स्टडी करते हुए, मुताला करते हुए खुदा के कलाम का आपको उसके सामने पेश करने की जरूरत है। It takes work because if you're paying attention to every word and even the punctuations, that takes a lot of work because that's a lot of detail, and detail takes time. तो इसका मतलब ये है कि आपको हर एक चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, उसी तरह से जिस तरह से आपको काम करते हैं कि जो जो नुक्ता है, जो शोशा है, वो किस तरह से एक जुमले की जो बनावट है वो किस तरह से है। इसका मतलब है कि जब आप इन चीजों पर गौर करेंगे तो ये एक बड़ा जो टाइम दरकार है इसके लिए, तो इस तरह से खुदा के कलाम का मुताला आपको करना है, टाइम देकर, ध्यान देकर। Then he says, rightly dividing the word of truth. और फिर वो कहता है कि जो हक का कलाम है, फिर आप दुरुस्तगी के साथ इस काम को आप लेकर के आएंगे, इस काम को कर सकेंगे दुरुस्तगी के साथ। Now the right division of God's word is so important to our understanding. That's why it takes work. तो हमारी समझ के लिए बड़ा जरूरी है कि हम जब मुताला करें खुदा के कलाम का, तो उस पर ध्यान देकर, वक्त लगाकर, तरीके से, ताकि हम उस कलाम को समझ सकें। Now, I want you to think about the Bible is like a puzzle. It's like a puzzle. And I don't know if you've ever done puzzles. I used to do puzzles when I was a little boy. But when I would get a box of puzzles, on the outside of the box, you could see the picture, what the puzzle looks like. But when you open the box, the pieces are everywhere. सो मैं आपको बताना, समझाना चाहता हूं कि ये ऐसी है जैसे आप एक पजल को, एक मम्मी को आप सुलझाना, एक मुश्किल को आप सुलझाना चाहते हैं। उसमें बहुत सारे जो पीसेस होते हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं, और फिर उनको एक एक करके जो आप पीसेस को जोड़ते हैं, तो फिर उसको आप, उस उलझन को, उस पजल को आप हल करते हैं। And I would open the box, the pieces are everywhere, and then I'd have to pour the puzzle pieces out and start trying to figure out what piece goes with what so that the picture can come into focus.
और मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था तो मैं जब पजल को हल करता था, वो सारे जो पीसीस हैं वो एक बॉक्स में होते थे, और जब आप उस बॉक्स को खोलते हैं तो वो सारे के सारे जो है वो बाहर निकल आते हैं। फिर उनमें से जो काम की जो बात होती थी वो ये थी कि उनको उनकी दुरुस्त तरतीब के मुताबिक उनको निकाल करके इकट्ठा करना और उनको जोड़ना होता था ताकि वो हल हो सके। And that's how the Bible is. The Bible is like a box of puzzles where the pieces are everywhere. And through study and careful right division, we are putting the pieces together that belong together so that we can see clearly what God is saying to us. तो इसी तरह से ये जो खुदा का कलाम है ये भी मुख्तलिफ और बहुत सारे जो पजल के पीसेस हैं उसकी तरह है, कोई इधर है कोई इधर है, और उसको आपने ध्यान से आपने इकट्ठा करना है, जोड़ना है, ताकि जो सही जो पिक्चर है वो आपके सामने आ सके। Why do we have so much false doctrine and false teaching that comes right out of the Bible? Well, it's because people put the puzzle pieces in the wrong places. क्यों यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो तालीमात हैं, जो दिगर जो ख्यालात हैं, वो लोगों ने बाइबल में से निकाल करके ही पेश किए हुए हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने गलत जो पीसेस हैं वो पीसेस जोड़ जाड़ के अपने जो नजरियात के हामिल मताल जो 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 बातें हैं वो पेश की हुई हैं और लोग उसी तरह से मानते चले जा रहे हैं। When you put the pieces of the puzzle in the wrong places, that's when you come up with doctrines like the Trinity. When you put the pieces of the puzzle in the wrong places, that's when you come up with all kinds of strange doctrines and strange ideologies that come out of the Bible. जब आप इन पजल्स को आप गलत तरीके से जोड़ते हैं और यहाँ आप उसको जोड़ेंगे तो मुख्तलिफ किस्म की जो नजरियात हैं, जो तालीमात हैं, वो आपके सामने इस वक्त भी चर्च में मुख्तलिफ किस्म की जो तालीमात हैं वो आपको नजर आएंगी, जो कि खुदा की एक खुदा के होने के बरक्स जो है वो मुख्तलिफ नजरियात हैं। So that's what these classes are all about. We're helping to put the pieces of the puzzle in the right places, or rightly dividing the word of truth so that we can see the picture that God is trying to express to us. और इसीलिए हम इस सिलसिले को आज शुरू कर रहे हैं ताकि हम जो 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 दुरुस्त जो पीसेस हैं उनको दुरुस्त तरीके से लगाएं और जो राइटली जो ठीक दुरुस्त जो तालीम है, जो रसूलों की तालीम है, उसको हम देख सकें। So now let us look and see how the puzzle pieces are spread out in the Bible so that as we study in certain Bible doctrines, we know where to look for the pieces to produce the picture. So जो मुख्तलिफ किस्म के जो पीसेस हैं जो पूरी बाइबल में बिखरे पड़े हैं, हम उनको इकट्ठा करके जो सही जो तस्वीर है उसको देखने की कोशिश करते हैं, और ये भी कि जो मुख्तलिफ जो गलत जो पीसेस जुड़े हुए हैं, जो गलत तालीमात हैं, उनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। Let's go to the book of Isaiah, chapter 28. सो हम यशाया के सहीफे और उसके 28वें बाब की तरफ हम बढ़ते हैं। Isaiah chapter 28, and let's read verse number 9 through 13. और ये सफा नंबर 681 पर 28वां बाब और उसकी 9वीं आयत से फ्रॉम वर्स 9 टू 13 13 आयत तक हम पढ़ेंगे। हम 28 बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर के 13वीं आयत, सफा नंबर 681। यहाँ पर लिखा है, वो किसको दानिश सिखाएगा, किसको वाज करके समझाएगा, क्या उनको जिनका दूध छुड़ाया गया, जो छातियों से जुदा किए गए, क्योंकि हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, लेकिन वो बेगाना लबों
और अजनबी जुबान से इन लोगों से कलाम करेगा जिनको उसने फरमाया ये आराम है। तुम थके मांदों को आराम दो और ये ताजगी है। पर वो शिनवा ना हुए, बस खुदावंद का कलाम उनके लिए हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां होगा, ताकि वो चले जाएं और पीछे गिरें और शिकस्त खाएं और दाम में फंसे और गिरफ्तार हों। Now, this is, we read this scripture, and I want you to remember this scripture. In my humble opinion, this is probably one of the most important scriptures in the entire Bible. सो मेरी जो नाकिस जो राय है उसके मुताबिक ये पूरी बाइबल में से अहम ये हिस्सा है, अगर हम इसको समझ सके तो। Because this tells you how the Bible is written and tells you how you are to put the pieces of the puzzle together to understand it. क्योंकि ये जो कलाम का हिस्सा है ये हमको आगाही बख्शता है कि किस तरह से खुदा का कलाम लिखा गया और किस तरह से जो हिस्से हैं जो यहाँ और वहां और इधर और उधर हैं उनको यहां से वहां से उठा करके इकट्ठा किया गया ताकि वो हमारे सामने आ सके। First of all, in verse 9, he says, who can be taught the knowledge of God? Who can be made to understand the doctrine of God? ये जो यशाया 28 बाब उसकी 9वीं आयत बयान करती है कि वो किसको दानिश सिखाएगा और किसको वाज करके समझाया जाएगा, किसको समझाया जा सकता है। Then he says, them that are weaned from the milk and drawn from the breast, those are babies. So in other words, if you're going to understand knowledge and doctrine, you have to be a child of God in relationship with him. और फिर वो इसका जवाब देता है कि उनको समझाया जा सकता है जो बच्चे हैं खुदा की, जो समझना चाहते हैं, जो इस नॉलेज में, इसमें, इस तालीम में, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, कलाम को समझना चाहते हैं, वो समझ सकते हैं। People that are not in a real relationship with God cannot receive his knowledge, cannot understand his doctrine, because understanding God does not come any other way other than through revelation and relationship. और याद रहे कि ये उस ताल्लुक की बुनियाद पर है जो एक बच्चा अपने बाप के साथ रखता है। अगर हमारा ताल्लुक उस खुदा के साथ नहीं है या उस तरह से जिस तरह से एक बच्चे का बाप के साथ, मां के साथ होता है, तो फिर हम इस कलाम की समझ नहीं रख सकते। अगर हम कलाम को समझना चाहते हैं, दानिश पाना चाहते हैं, तो हमें अपना जो ताल्लुक है वो खुदा के साथ इस तरह से जोड़ना होगा, अपने आप को एक बच्चे की तरह उसके हुजूर पेश करना होगा। It's like being in a relationship with a person, a husband and a wife that get together. The closer they get to each other, the more they see, the more of their life they reveal, the more, and the husband knows everything about the wife knows everything about the husband because they are so close. And that's how it is with God. The closer we get to him in relationship, the more of him we see, the more revelation we receive. सो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक शौहर और बीवी का जो आपस में ताल्लुक होता है, जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होते हैं, बहुत करीब होते हैं, तो वो एक दूसरे के हवाले से बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझते हैं। इसी तरह से अगर हमारा ताल्लुक खुदा के साथ इस तरह से क्लोज होगा, जितना हम आपस में क्लोज खुदा के साथ होते जाएंगे, उसी तरह से हम और उसको समझने लगेंगे, समझते जाएंगे और समझने लगेंगे। So you have to be in a relationship with him in order to understand his knowledge and understand his doctrine.
सो उसको समझने के लिए, उसकी बातों को, उसके कलाम को, उसकी तालीम को समझने के लिए जरूरी है कि हमारा उसके साथ क्लोज रिलेशनशिप हो, हम उसके साथ जुड़े हों। तो फिर ही हम उसको, एक आम सी बात है कि आप किसी इंसान को नहीं समझ सकते जब तक कि आप उसके करीब ना हो, उसके क्लोज ना हो। Without it, this Bible, the scripture says, is sealed to the world. And so without the relationship with God, without the baptism of the Holy Ghost, a person cannot understand the things of the word of God. It is sealed to them. और ये याद रखें कि ये जो खुदा का कलाम है, ये इस तरह से सील है, ये बंद है, सरबामोहर है। और इसको कोई शख्स जो है वो जब तक के कोई उसके साथ इस रिलेशन में, उस ताल्लुक में नहीं आएगा, उसके लिए ये बंद ही रहेगी, सरबामोहर ही रहेगी, और ये उसके लिए कभी भी नहीं खुलेगी। एक minute. Someone's knocking at my door. 1 minute, please. ओके, 1 मिनट। आप मिश्रा साहब उर्दू सीख रहे हैं, मुझे लगता है कि फिर हमें तर्जमे की जरूरत नहीं रही। इनकी टीचर अच्छी है इस्लामाबाद से, जो इनको उर्दू सिखा रही हैं। Okay, sorry about that. कोई मसला नहीं। Okay. Well, shukriya. Okay, so verse number 10 then tells us how the Bible is written and how it is to be understood. सो जो 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 10वीं आयत है वो हमें आगाह करती है कि किस तरह से खुदा के कलाम को लिखा गया है, किस तरह से उसको समझा जा सकता है। Now, God has a very simple way of calling our attention to things that are of the utmost importance in the Bible. सो खुदा ने बड़ा आसान ये तरीका चुना कि किस तरह से हम उसके कलाम को समझ सकते हैं। And that means that he uses is repetition. इसका मतलब है कि उसने जो उसकी जो रेपिटेशन है उसको इस्तेमाल किया है। Anytime, जिसको तो वो क्या कहते हैं, रिपीट करते हुए बात को बताया है। Haji Hanji, anytime you see verses repeated or words repeated, anytime you see that in the Bible, that ought to be your clue that this must be very important. सो अगर कोई चीज दोहराई गई है, दो तरह से दोहरे तौर पर कही गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ी अहमियत की हामिल बात है। When I was a little boy growing up, and my mother or my father was instructing me, if they repeated something to me, I knew that they were pretty serious. जब मैं बच्चा था और मेरे माँ बाप मुझे कोई बात कहते, और खुसूसन जब वो कोई बात दोहराते, तो मेरी समझ के लिए मुझे समझ आता कि ये इंतहाई अहम कोई बात है जो ये दोहरा के बात कर रहे हैं। And I knew that they were really serious when they would say, "Now don't make me tell you again." और जब कोई बहुत ही ज्यादा कोई संजीदा बात होती, तो फिर वो यूं कहते कि मुझे इस बात को दोहराना ना पड़े। That's because repetition is a means that is used to really emphasize a point and really drive a point home to the individual. तो अगर किसी चीज को दोहराया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा ही अहम नुक्ता है जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। So when you see words or verses repeated in the Bible, you ought to that ought to get your attention that what God is saying is really important. सो अगर खुदा के कलाम में कोई बात दोहराई गई है, दोहराई जा रही है, तो ये आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि ये कितना अहम है, ये जो कहा जा रहा है। So in verse number 10, the word precept,
we see that repeated 4 times. सो आप देखें कि यहाँ पर जो 10वीं जो आयत है, इसमें आप देखें कि 4 दफा जो है वो इस बात को कहा गया है. So in understanding and reading the Bible and rightly dividing, precept must be upon precept. Those are principles. So the principles have to line up with the principles. सो ये जो असूल हैं, जो इसको कहा गया, जो कानून है, जो उसको अगर 4 दफा दोहराया गया तो इसका मतलब है कि ये जो प्रिंसिपल है, ये जो कानून है, जो असूल है, इसको हमें समझने की जरूरत है. In other words, we're studying the oneness of the Godhead. The principles of that particular subject from the Old Testament must line up with the principles of that same subject from the New Testament. सो अगर जो खुदाए वाहिद का जो असूल है, अगर वो नए अहदनामे में बयान किया गया है, तो उसी संजीदगी के साथ, उसी असूल के साथ जो नए अहदनामे में है, उसी तरह से उसको देखने की जरूरत है. ये नहीं कि नए अहदनामे में तो कुछ और कहा गया, उसकी समझ कुछ और है, तो नए अहदनामे में, पुराने अहदनामे में तो नए में कुछ और है, उसको और तरह से समझा जाएगा. Then the word line is repeated 4 times. Line upon line, line upon line. सो यहाँ पर अगर ये लिखा है कि जो हुक्म पर हुक्म है, जो अगर उसको अगर रिपीट किया गया, दोहराया गया है, तो उसको हमें देखने की जरूरत है. The lines are the actual verses of scripture, the sentences, the words, how the verse is divided. Line must be upon line. Line must be upon line. So there are lines relative to a subject in the Old Testament. There are lines relative to a subject in the New Testament. And those lines must be put together. सो अगर जो लाइंस हैं, अगर वो 4 दफा उसको दोहराएगा, तो हमें ये देखने की जरूरत है जो सब्जेक्ट है उसको उस सब्जेक्ट के साथ, जो पहले कहा गया है, जो बाद में कहा जा रहा है, उसको उसके साथ मिलाया गया, और उसको उसी तरह से मिला करके हम देख सकेंगे और जान सकेंगे. This is how the Bible is written, and this is how it is to be understood. And we know this because there's so much repetition in this verse. और याद है कि इसी असूल के तहत जो है वो बाइबल को लिखा गया है, और उसी तरह से हम उसको समझ सकते हैं कि जैसे लिखा है, अगर उसको दोहराया गया है तो उसका मतलब है कि ये उसका पार्ट है, ये उसका हिस्सा है, उसको हम उसी तरह से हम समझ सकते हैं. Then he says, here a little and there a little, meaning there's a little in the Old Testament concerning a subject. There's a little in the New Testament concerning a subject. सो फिर यहां पर कहा गया है कि थोड़ा यहां और थोड़ा वहां. इसका मतलब है कि अगर थोड़ा जो है वो पुराने अहदनामे में है, और थोड़ा यहां जो थोड़ा नए अहदनामे में है, और उसको हम मिला करके हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं. So as we study the oneness of the Godhead, you'll see we're going back and forth from Old Testament to New Testament. That's because there's principles of that subject in the Old Testament, principles of that subject in the New Testament. Here a little and there a little. That's how we put the puzzle together and see the picture of who God is clearly. तो अगर हम खुदाए वाहिद का मुताला कर रहे हैं, तो थोड़ा यहां है, थोड़ा सा नए अहदनामे में उसको हम देखेंगे, जो थोड़ा वहां है, जो पुराने अहदनामे में है, तो फिर ही हम जाकर के किसी चीज की समझ रख सकेंगे, स्पेशली जब हम खुदाए वाहिद के हवाले से जानेंगे, पुराने अहदनामे में से और नए अहदनामे में से, थोड़ा वहां और थोड़ा यहां. Okay, so then in verse number 11 and 12, now he is talking about something that you and I can have today, which is the baptism of the Holy Spirit. और फिर जो 11वीं आयत है वो इस बात की तरफ इशारा करती है, यानी बेगाना लबों और अजनबी जुबान, यानी आज के इस जमाने के हवाले से जब पाक रूह का नुज़ूल है गैर जुबानों के साथ. Because when you and I receive the Holy Spirit, if you have received the Spirit of God,
we began to speak with another tongue. We began to speak in another language that God gave us the ability to speak. सो जब हम पाकरू को हासिल करते हैं तो पाकरू के सबब से गैर जुबानें बोली जाती हैं, जिस तरह से कि बाइबल हमें आगाह करती है। Now, this is what it takes in order for us to understand the Bible. We need the baptism of the Holy Spirit with the evidence of speaking in other tongues. तो ये इस तरफ इशारा करती है कि हमें खुदा के कलाम को समझने के लिए जरूरी है कि हम पाक रूह का बपतिस्मा पाएं। Without the Holy Ghost, you can't put the lines together. You won't understand the precepts, and you won't know where the here is and the there a little is. You won't understand any of that. क्योंकि बगैर पाक रूह के जो लाइंस हैं, जो यहाँ है और जो वहां है, उन लाइंस को हम किसी भी तरह से आपस में मिला नहीं सकते। याद रहे, बगैर पाक रूह के आपको पाक रूह की जरूरत है ताकि वो आपको खुदा का कलाम समझने में मदद दे सके। And he tells you in verse number 12 what verse number 11 means. This is the rest. And Jesus says that the rest and the refreshing is the baptism of the Holy Ghost. और फिर जो 12वीं आयत है, ये जुड़ी हुई है 11वीं आयत की, कि जब आप इस इन लाइंस को पालेंगे तो फिर ये ऐसा होगा जैसे आराम है थके मंदों का, जिस तरह से खुदा ने भी कहा कि आओ और बोझे थके हुए मंदे लोगों, मेरे पास मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। So in other words, in order to understand the way the Bible is written, to understand the Bible, you need the Holy Ghost. You need the rest and the refreshing, which is the baptism of the Holy Ghost. तो जब इस दूसरे लफ्जों में अगर आप आराम चाहते हैं और ताजगी चाहते हैं ताकि आप खुदा के कलाम को जान सकें, तो जरूर है कि आप रूह का बपतिस्मा पाए हो, रूह का बपतिस्मा आपके पास हो। And then in verse number 13, we see him give us more repetition. और फिर हम 13वीं आयत में और जो है वो कलाम को आपको दोहराया जाना यहां पर नजर आएगा। We see the word precept appear 4 more times. We see the word line appear 4 more times. Then he says again, here a little and there a little. और आपको यहां पर जो हुक्म पर हुक्म है, ये आपको और 4 दफा आपको यहां पर नजर आएगा। यहां पर कानून और 4 मर्तबा यहां पर नजर आएगा, जो थोड़ा यहां और थोड़ा वहां के हिसाब से लिखा गया है। Now you may say, why do we keep discussing this? Why do we keep saying this? It is because in order to understand the oneness of the Godhead, you have to have this basic framework for how to understand the Bible. और आप में से कोई कह सकता है कि ये क्यों है, पर याद रखें कि इसको समझने के लिए जो बाइबल का जो फ्रेमवर्क है, उसको जानने के लिए, समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले इस बात को जानें और समझें। Okay. Are there any questions? अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कोई सवाल है आपके ज़हन में आता हो जो आप और बात को समझना चाहते हैं? कोई सवाल? Any questions? I know we gave you a lot of information, and I want to make sure we have it if we have any questions. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि कोई सवाल जो इस हवाले से आपके ज़हन में आता हो। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज्यादा जो है वो बयान किया जा चुका है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपके ज़हन में अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, प्लीज। Everybody understands so far. I try to make it as plain as possible.
अगर आप सब समझ रहे हैं, समझ चुके हैं जो मैं बयान कर रहा हूं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ये इस बात की गवाही है कि आपके सामने कोई सवाल नहीं है, तो हम आगे बढ़े। हाँ जी, ठीक है। Okay, two more scriptures. We'll just take maybe another 5 minutes, and let's actually get into a little bit of the actual subject, because up until now we've just been trying to lay the foundation, but let's look at two scriptures that actually gets into a little bit of our subject. दो और हवाला जात हैं अगले 5 मिनट और मैं आपके लूंगा, ताकि हम इसको हम और बेहतर तौर पर समझ सकें। The first one is in Deuteronomy chapter 6 and verse 4. और ये हवाला जो है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, Deuteronomy chapter 6 and verse 4. इस्तिस्ना की किताब और उसका चौथा बाब, सॉरी, चैप्टर 4 वर्स 6। Deuteronomy chapter 6 and verse 4. ओके, हाँ जी। ये इस्तिस्ना की किताब छठा बाब है और उसकी जो चौथी आयत है, जो मरकजी आयत है, इस हवाले से सफा नंबर 100 उर्दू की बाइबल में 172। मैं इसको पढ़ देता हूं, ये इस आयत को हरगिज मत भूलिएगा। चौथी आयत है, सुन ऐ इस्राइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। Now, this is, of course, the book of Deuteronomy is the second giving of the law. It's the rehearsal of the law that God gave the children of Israel when they came out of Egyptian slavery. सो ये जो इस्तिस्ना की किताब है, ये जब बनी इसराइल मुल्क के मिस्र में से बाहर निकले, तो ये जो लॉ की सूरत में दिया गया था। They were in Egypt, down in Egypt for 430 years. And in Egypt, the Egyptians, they worshiped a trinity of gods. सो ये 450 साल तकरीबन ये बनी इसराइल मिस्रियों की गुलामी में रहे, और जब वो उनकी गुलामी में थे, तो वहां का जो तौर तरीका था, या जिस तरह की वो खुदाओं की इबादत करते थे, मुख्तलिफ खुदाओं की, तो लाजमी बात थी कि उनके जहनों पर उसका असरात रहे होंगे। They worshiped a trinity, Isis, Horus, and Osiris. तो वो जो तस्लीस थी, जो तस्लीस जो है, ये ट्रायन गॉड का, ये तीन तरह की, उसके बाद को वो आइसिस, हॉरस एंड Osiris. ओसाइरिस। तो ये तीन जो ट्रिनिटी थी, ये तस्लीस थी, उसकी वो जो मिस्री थे वो वर्शिप करते थे, यानी तीन खुदाओं की। This is what God's people were subject to for 430 years, the worship of these three Egyptian deities. तो वो वहां पर 430 साल तक बनी इसराइल जो है, वो उनके खुदाओं की जो तस्लीसी जो खुदा था वहां पर मिस्रियों का, उनकी वो इबादत करते थे। इसलिए जो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर खुदा करना चाहता था कि पहले अपने आप को क्लियर करो, तुम्हारा दिमाग जो है ना वो सीधा टिकाने पर हो, और तीन की बजाय एक की तरफ आओ। So when they came out of Egypt and came out into the wilderness, the first thing that God wanted his people to hear was, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." सो जब वो बाहर निकल के मिस्र से आए, तो खुदा ने कहा कि वो इस बात को सुने, इसलिए तो खुदा ने कहा, सुन ऐ इस्राइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है।
In other words, I know you've been in Egypt for 430 years. I know the Egyptians worship a trinity of gods. I know the Egyptians don't know me, but because you are in relationship with me, you need to know that there is one Lord. The Lord your God is one. सो खुदावन ने कहा कि मुझे पता है कि तुम लोग वहां पर 400 साल से जायद गुलामी में रहे हो और 400 साल से जायद तुम वहां पर जो उनकी जो ट्रायन गॉड है तुम उसकी वर्शिप करते रहे हो, प्रस्तिश करते रहे हो। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जो तुम्हारा खुदा है, जो खुदा है वो एक ही खुदा है, तीन नहीं है, मुसल्लस की सूरत में नहीं है। All right, and let's look at the other verse we want to look at today, which is in the book of Ephesians, chapter number 4. और जब हम नए ऐतनामे को इफ्सियों के खत के मुताबिक और उसके चौथे बाब को जब हम देखते हैं तो उसमें आप देखें, मेरे साथ आप निकालें नए ऐतनामे को इफ्सियों के खत और उसका चौथा बाब। Ephesians chapter 4 and verse number 5 and 6. और उसका जो चौथा बाब और उसका जो इफ्सियों के खत और उसका चौथा बाब और उसकी आयत नंबर हम देखते हैं 6, आयत सफा नंबर 186। यहां पर लिखा है, और सबका खुदा और बाप एक ही है जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। All right. Now, this obviously is in the New Testament saying the exact same thing that God told his people in Deuteronomy, that the Lord is one. सो वही जो उसी बात को यहां पर दोहराया गया है जो इस्तिस्ना की किताब में है कि जैसे वहां पर कहा गया कि सुने इस्राएल, खुदावन तुम्हारा खुदा एक ही है, यहां पर भी इफ्सियों के खत में कहा गया है सबका खुदा और बाप एक ही है जो सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर है। The one Lord is none other than our Lord and Savior, Jesus Christ. सो एक ही खुदावंद है और जो कि खुदावंद यीशु मसीह के अलावा और कोई है नहीं। The one faith is the faith that the apostles taught, which is the apostolic faith or the apostolic doctrine. और एक ही ईमान है जो कि रसूलों का भी था, जो कि रसूली ईमान है। And the one baptism is the baptism, well, it's in two parts, water and spirit, but it is the baptism in the name of Jesus. सो एक ही बपतिस्मा है जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, पानी और रूह का, जो कि यीशु के नाम का है। The one God, who is the Father of us all, is the same one Lord that he just mentioned in the previous verse. और एक ही खुदा बाप है और एक ही खुदावंद है। And the one God who's the Father of us all, who is in you all, is the same one Spirit that he referenced in verse number 4. और एक ही खुदा बाप है जो सबके ऊपर है और एक ही रूह है जब हम चौथी आयत में पढ़ते हैं। So the one Lord, the one God, the one Spirit is all the same. It is one. The name is Jesus Christ. तो एक ही खुदावंद है, एक ही रूह है और एक ही ईमान है जो कि यीशु मसीह का है और यीशु मसीह के मुतालिक है। And when you study the Bible, you will see from Genesis to Revelation, you will see the reference to one. और जब आप खुदा के कलाम का मुताला करते हैं, पैदाइश की किताब से लेकर के मकाशवा की किताब के, तो वहां पर आपको एक ही खुदा नजर आता है। Now, we'll end it there for today, but this is just a brief introduction to let you know that the careful study of the oneness of the Godhead is going to be pretty deep, and it's going to be a lot of scripture, but
we're going to teach it in such a way to help you to understand the Word of God. सो हम आज के इस लेसन को सबक को यहाँ पर ही इख्तिताम देते हैं, आपको ये उम्मीद करते हुए कि इस कलाम की स्टडी के हवाले से आपको खुदा बेहतर तौर पर समझ बख्शे ताकि आप जान सकें कि खुदा. All right. So next Saturday, Lord willing, we will get into it. And for now, we'll close there. Are there any questions? तो अगले हफ्ते मजीद हम इसको अभी हमने इब्तिदाई की है, तो अगले हफ्ते से हम आगे बढ़ेंगे. तो इससे पहले क्या हम इसको इख्तिताम दें, कोई सवाल आपके ज़हनों में उठता हो तो हम उसको डिस्कस करेंगे अभी. I see a question from Pastor Wasim concerning Genesis chapter 1 and verse 26. और पास्टर वसीम की तरफ से जो सवाल किया गया है वो पैदाइश की किताब में उसके जो पहला बाप उसकी जो 26वीं या 27वीं आयत में से. Yes. And he said, God said, let us make man in our image. और ये वो सवाल है जो बड़ा ही किया जाता है कि खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत छवि के मान बनाएं. आओ हम इंसान को. Okay, so I'll take the time to answer this question. No problem. तो मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पर इस हवाले से इस सवाल के जवाब का आपको लेता हूँ और जवाब देने की कोशिश करता हूँ. So first of all, you have to read verse 26 and verse 27 together. सो जो पहला बाप और उसकी 26 और 27वीं आयत है, इन दोनों को मैं आपके सामने पढ़े देता हूँ. सफा नंबर 5 पर है 26वीं आयत से. फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें. और 27वीं आयत, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया. यहाँ पर एक डैश है, छोटा सा हिस्सा कटा हुआ है उर्दू की बाइबल में से. खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया. So you'll notice in verse 26, he says, let us make man in our image. And then in verse 27, it says, so God created man in his own image. तो यहाँ पर लिखा है 26वीं आयत में कि खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी शक्ल और छवि पर बनाएं. लेकिन जब 27वीं आयत हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया. There's a difference between the word create and the word make. और यहाँ पर जो फर्क है वो create और make में है. The word create means to cause to exist in the mind. और create जो लफ्ज है तख्लीक करने का, उसका मतलब है कि वो जो इमेज है वो दिमागी तौर पर जो ज़हन में जो बनाया गया है. The word make means to fashion or produce. और जो लफ्ज make है जो बनाना, इसका मतलब है कि इस फैशन में इस तरीके पे है कि जिसमें वो बनाया गया है या उसको हाथों से जो तरतीब दिया गया है. So God created man. He created man in his own image. We look like exactly what God wanted us to look like. But in our condition, we were not made like God because we were born in sin. So जो लफ्ज क्रिएट है वो इस तरह से है कि खुदा ने बनाया, लेकिन जो बनाया गया है वो तो लिखा गया है. Please repeat it again because of somewhere. Yeah, no issue. So God created us in his own image. We look exactly the way that God would have us to look. But he did not make us like him because of Adam's sin in the Garden of Eden. We were all born in sin.
सो हमें जो तख्लीक किया गया है वो बनाया तो उसी तरह से जो उसके ज़हन में है, जिस तरह से खुदा, लेकिन हम उस तरह से बने नहीं, हम उस तरह से बनाए नहीं गए, क्योंकि आदम के बनने के बाद वो गुनाह में गिर गया। So then, when God says, let us make man in our image, he is talking to something that shares his image. जो जब वो कह रहा है कि आओ हम इंसान को अपनी शक्ल शबीह पर बनाएं, तो इसका मतलब है कि वो उसको बनाया गया एक जो 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 शबीह है, जो इमेज है उस पर। Now, in order to understand who he is talking to, we have to read, let's go to Romans chapter number 8. और हम इस बात को समझने की जरूरत है कि वो किन से मुखातिब है, जब हम रोमियो का खत और उसका जो 8वां बाब है उसको अगर हम देखें, रोमन चैप्टर 8। Yes, Romans chapter 8 and verse number 29. और उसकी 8वें बाब की जो 29वीं आयत है वो हम देखते हैं, रोमियो 8 बाब और उसकी 29वीं आयत जो है सफा नंबर 146। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे की हम शक्ल हो, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। Now remember, in Genesis, he says, let us make man in our image. He's talking to something that shares his image. सो वो जब उसने कहा पैदाइश किताब में कि आओ हम इंसान को अपनी शक्ल शबीह पर बनाएं, तो वो जो इमेज है वो शेयर यहाँ पर किया जा रहा है। The image of God was Jesus Christ. जो खुदा की जो शबीह है वो मसीह यीशु का जो इमेज है वो है। And he says in this text that we, that is the church, is predestined to be conformed to the image of his son. तो जो चर्च का जो 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 शबीह है वो क्रिएट की गई है मसीह यीशु पर, जो उसका बेटा है। So then it is the church that shares the image of God. So we are supposed to look like God in a spiritual sense. तो जो कलीसिया है वो मसीह यीशु की शबीह को पेश करती है ताकि हम उस जैसे नजर आए जैसा वो है। We're supposed to bear his holiness, to bear his righteousness. The church is supposed to look like God. तो हमें जरूर है एज ए चर्च होने की हैसियत से कि हम उसकी जो कुदूसियत है, जो उसकी जो पाकीज़गी है वो शेयर करें, ताकि हम उस जैसे नजर आए जैसा वो है। So if the church as a whole shares the image of God, then when God says, let us make man in our image, he was talking to the church. सो अगर वो ये कहता है कि वो आओ हम इंसान को अपनी शक्ल शकील पर बनाए, तो वो उस इमेज की, वो जो शबीह है, जो चर्च की शबीह है, जो मसीह यीशु की शबीह है, वो उस शबीह की बात करता है। Because it is the church then that assists God in making man. सो वो चर्च को वो ये असिस्ट करता है ताकि इंसान को बनाया जा सके। Man that was born in sin, man that was born in wickedness, was born separate from God. सो वो जो इंसान है वो जो गुनाह में पैदा हुआ है, और वो गुनाह जो है वो खुदा से अलग करता है। And it takes the church to preach the gospel, to help man be saved. It takes the church to teach man the doctrines of the Bible so that man can become like God. सो चर्च जो है वो प्रीच करता है ताकि वो जो इंसान है वो उस शबीह के मुताबिक बन सकें जिसके लिए खुदा हमें उभारता है। Now, let me show you that it is the church that works with God to make man in his image. सो जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि जो चर्च है वो खुदा के साथ मिलकर काम करता है ताकि इंसान जो है वो उस शबीह के मुताबिक बन सके। Let's read 1 Corinthians chapter 3 and verse 9. तो हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका जो तीसरा बाब है, 1 Corinthians chapter 3 verse 9। Yes, sir. यहाँ पर जो 9वीं आयत है तीसरे बाब की सफा नंबर 155, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं
तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। So he says, we, that is the church, the ministry, are laborers together with God. सो वो ये बयान करता है कि हम यानी जो चर्च है वो खुदा के साथ काम करने वाले हैं। What are we laboring with him to do? We are laboring with God to make man in his image. तो हम खुदा के साथ क्या काम कर रहे हैं? हम ये काम कर रहे हैं कि हम इंसान को उसकी शक्ल उसकी छवि पर बनाने का काम कर रहे हैं। Every time we preach the gospel, we are laboring with God. Even this class today, we are laboring with God to teach so that we can become in the image of God. जब भी हम खुदा के कलाम को शेयर कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुदा के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। लाइक जैसे अभी हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं तो हम खुदा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इंसान को खुदा की छवि पर हम बना सके, उस जैसी लाइकनेस दे सकें। So in Genesis 1 and 26, the us, God was talking to his church. Now, some people may say, well, the church didn't exist then. But you've got to remember, we always existed in the mind of God. We always existed in the foreknowledge of God. And God can talk to something in his mind before it exists in reality. सो पैदाइश की किताब अगर एक पहले बाब उसकी 26वें आयत में खुदा कहता है कि आओ हम इंसान को अपनी शक्ल छवि पर बनाए, तो हमसे मुराद चर्च है कि जो चर्च हम मिल करके। और आप में से कोई सवाल कर सकता है कि उस वक्त क्या कोई चर्च एग्जिस्ट करता था उस वक्त जब वो इंसान को बनाने वाला था? लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि हम पहले से ही उसके माइंड में, उसके दिमाग में, उसके ख्याल में पहले से ही मौजूद हैं जब वो बात कर रहा है कि आओ हम इंसान को अपनी शक्ल छवि पर बनाएं। Because the scripture says in Romans that God calls those things that are not as though they were. सो क्योंकि हम खुदा के कलाम में से पढ़ पाते हैं कि वो पहले से उन चीजों को वो तलब फरमा लेता है, तलब कर लेता है जो पहले से भी है भी नहीं, लेकिन उनको तलब करता है क्योंकि वो पहले से उसके दिमाग में, उसके ख्याल में मौजूद हैं। And then in the book of Acts, it says, known unto God are all the works from the beginning of the world. सो इससे पहले कि दुनिया का वजूद है वो पहले से उसके ख्याल में मौजूद है। So that's who God was talking to in Genesis 1 and 26. Though he wasn't talking to a Trinity because there is no Trinity. He wasn't talking to the angels because the angels don't assist him in making man. He was talking to the church because the church today assists God, labors with God in the making of man into the image of God. तो वो किसी और को नहीं बुला रहा कि भी आओ हम मिलकर इंसान को बनाए, न ट्रिनिटी को, क्योंकि उसको जो ट्रिनिटी तो है ही नहीं है, तो वो कैसे उसको बुला सकता है? ना ही वो और तरह के जो फरिश्ते हैं उनको कि भी आओ, क्योंकि फरिश्ते जो हैं वो किसी भी तरह से इंसान की मेकिंग में, इंसान के बनाने में शामिल ही नहीं है, तो किस तरह से उनको कह सकता है कि भी आओ हम इंसान को। तो ये चर्च है, चर्च कह रहा है कि आओ हम इंसान को अपनी शक्ल छवि पर बनाए। All right, Pastor Wasim, did that answer your question? I know that was a long answer. पास्टर वसीम, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये सवाल का जवाब है। मैं समझता हूं कि ये बड़ा एक लंबा जवाब है जो आपने जो सवाल किया था। Thank you so much, Bishop. We are truly very blessed, and that was awesomely explained, and we got awesome points through this. Thank you so much. Praise the Lord. My pleasure. I know it's a long answer, but that's a nuanced question, and a nuanced question requires a nuanced answer. So any other questions tonight? कोई और जो सवाल है आज शाम के लिए आप कर सकते हैं। Praise the Lord. खुदावन की तारीफ हो। खुदावंद की तारीफ हो। आमीन। All right. Well, if there are no questions, I do want to thank you for your attention tonight.
अगर कोई और सवाल नहीं है तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो हम आज की इस बाइबल क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। And I hope and pray that you got some understanding and you were blessed by the word of the Lord. And Lord willing, on next Saturday, we will get into the crux of our lesson. And you don't want to miss anything. I promise it is going to be a great blessing to your soul. मैं अगले हफ्ते के लिए भी दुआ करता हूँ कि हम सब यहाँ पर मौजूद हों। मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी चीज आप मिस करें। तो अगले हफ्ते भी देखेंगे खुदा के कलाम में से कि क्या किस तरह से हमारी रहनुमाई करता है। All right. Well, I will pray us out again. Thank you for your attention tonight. We're praying for you, each and every one of you, in Jesus' name, that God will keep you and bless your families. And I will pray us out. आपकी तवज्जो के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनते हैं। आपकी दुआ को भी हम कि खुदावंद आपको हर तरह से बरकत बख्शे। Okay. Abu Yesukenampar, Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, for this class. Thank you for these precious students. Thank you for the blessed man of God, Pastor Farouk. Thank you for strengthening his body, even as he delivered the translation. We ask right now, God, that you continue to bless and keep your people. Help us, O Lord God, to grow in grace and the knowledge of you. Draw us closer to you. Give us greater revelation and insight. Oh Lord, open up the eyes of our understanding to understand your truth, oh God. Bless each and every one of them. Bless their families, oh Lord Jesus. Provide for their every need. Keep them, oh God, in the winter season. Touch their bodies. Send healing to those that need healing in the name of the Lord Jesus Christ. And bring us back next week at the appointed time if your will be done. We'll thank you and praise you right now, God, for all things. In Jesus' name we pray. Yesum Masih Kinam say, Amen. 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 We praise God. We praise God. All right. Khuda Hafiz. Thank you so much. Khuda Khuda Hafiz. Hafiz. Thank you so God bless much. खुदा हाफिज। खुदा आपको बरकत खुदा हाफिज खुदा हाफिज।